Good morning, friends. Welcome to my 42nd lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding four important concepts related to matrices. What are those four important concepts? The first concept is transpose of a matrix. The second one is determinant of a matrix. Third one is that is adjoint of a matrix, and the last one is inverse of a matrix. So we will discuss one by one. First, we have already discussed transpose of a matrix. It simply means converting the rows of a matrix into columns and columns of a matrix into rows. The matrix which you obtain by converting the rows of a matrix into columns and columns into rows is known as transpose of a matrix. The second one is determinant of a matrix. What is determinant of a matrix? It's a value associated with a square matrix. Generally, its value is computed by diagonal expansion method. Next, we have discussed regarding adjoint of a matrix. We have discussed the procedure to compute adjoint of a matrix. So today we will discuss more on adjoint of a matrix. Before discussing this, let me first share my screen with you. Then we will discuss adjoint of a matrix. 1 second, please. Okay, friends. Today we will discuss regarding adjoint of a matrix. What is the procedure to compute adjoint of a matrix? We have already discussed that there are 5 important steps to be followed to compute adjoint of a matrix. Step 1. What is the step 1? Step 1 is we have to convert the given matrix into determinant form. So first, convert the given matrix into determinant form. First point over. Second point, what we will do? Step 2, we have to compute minor of each element. We have to compute minor of each element. How minor is computed? Minor is computed by deleting the rows and the columns in which the element exists. Next, step 3. We have to compute cofactor of each element. सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है. How cofactor is computed? Cofactor is just equal to minor having a proper position sign. We have to calculate the position sign. I have already discussed how to calculate the position sign. We have to add the row number and column number. If it is even, the position sign will be plus, and if it is odd, the position sign will be minus. We have already discussed this. Next, step 4, we are discussing what you have to do. We have to construct a cofactor matrix. The matrix which is obtained by using the cofactor is known as cofactor matrix. Next, step 5. Cofactor matrix is known as CF. Next, we have to transpose the cofactor matrix. What is transpose? Transpose means converting the rows into columns and columns into rows. So we have to transpose it, and the value we get, that is equal to adjoint A, means determinant. So first we have to convert the given matrix into determinant form, and we will get a determinant A. So adjoint A we will get in the last step. So what are the steps? क्या क्या स्टेप्स है? पहला स्टेप में क्या होगा? हमको एक मैट्रिक्स देगा. सपोज A दिया हुआ है. A में क्या क्या होगा?
फर्स्ट होगा एलिमेंट A11, A12 होगा A13, नेक्स्ट होगा A21, A22, नेक्स्ट होगा A23, नेक्स्ट होगा A31, A32, नेक्स्ट होगा A33। इस तरह का एक हमको मैट्रिक्स देगा 3x3 मैट्रिक्स, या और कोई 2x2 हो सकता है। नेक्स्ट हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब दो ब्रैकेट देकर मैट्रिक्स को उतार देना, ये हो गया डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या क्या होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, A11, 12, 13, नेक्स्ट 21, 22, 23, नेक्स्ट 31, 32, 33। इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट कर देंगे। एक बार कन्वर्ट हो गया, फिर हम सारा एलिमेंट्स का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। सबका माइनर निकालेंगे। माइनर कैसे निकलता है, माइनर इस तरह से निकलता है, वो एलिमेंट जहां पर है उस रो को काट लेंगे, वो एलिमेंट जिस कॉलम में है उस कॉलम को काट लेंगे, बाकी जो बचेगा वो एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। माइनर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनर को रिप्रेजेंट किया जाता है M11, M12, M13, इस तरह से, लाइक दिस हम कैलकुलेट करेंगे। M31, 32, 33 अप टू 33। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जितना माइनर हुआ, माइनर का कोफैक्टर सारा एलिमेंट का निकालेंगे। कोफैक्टर क्या है, माइनर हैविंग प्रॉपर पोजीशन साइन, एंड कोफैक्टर को बोलेंगे C11, C12, C13 डॉट 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 अप टू C33। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगा, बहुत इजी। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगा, को फर्स्ट A11 का कोफैक्टर होगा C11, A12 का कोफैक्टर होगा C12, A13 का कोफैक्टर होगा C13, नेक्स्ट A21 का कोफैक्टर होगा A21, C21। 1 सेकेंड, ओके, C21, फिर C22, फिर होगा A23 का कोफैक्टर होगा C23, नेक्स्ट A31 का होगा C31, नेक्स्ट A22 का होगा C32, नेक्स्ट होगा A33 का होगा C33। इस तरह से एक मैट्रिक्स क्या बनाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। फिर ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना, इसका रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकाल देना है, जो आएगा वो वैल्यू होगा एडजॉइंट ए। तो हमको ये 5 स्टेप फॉलो करना है और एडजॉइंट ए निकालना है। 5 स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल कैलकुलेटिंग एडजॉइंट ए। अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसका एडजॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एग्जाम्पल, हेडिंग करो एग्जाम्पल। Example 1. First, compute adjoint of the following matrix. नीचे दिया गया मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो। नीचे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका एडजॉइंट निकालेंगे। नीचे कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है देखेंगे। नीचे दिया हुआ है, एग्जाम्पल लिखिए, 1 2 3, दैट इज A इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ है A इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 2 3, नेक्स्ट 2 3 2, नेक्स्ट 3 3 4। दिस इज द वैल्यू 3/3 मैट्रिक्स। इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। हमको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। स्टेप 1 फॉलो करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 क्या है, कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स टू डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालो,
1 2 3 2 3 2, नेक्स्ट 3 3 4 हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, माइनर, स्टेप 1 ओवर, कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्म। सेकंड स्टेप क्या है, माइनर निकालना है। किसका माइनर, सारा एलिमेंट का माइनर। तो पहले M11 निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M13 निकालेंगे, इस तरह से। तो फर्स्ट इसका माइनर निकालते हैं, 1 का माइनर। 1 का माइनर क्या होगा, M11। तो लिखेंगे इन दिस केस M11 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, M11 ये 1 जिस रो में है काटेंगे, 1 जिस कॉलम में है काटेंगे, बाकी जो बचेगा वो लिखेंगे। तो ये कट गया, ये कट गया, 1 जिस रो में है कटा, 1 जिस कॉलम में है कटा, बचा क्या, 3 2 3 4, 3 2 3 4। ओके, सो इसका वैल्यू कितना आता है, हम पढ़े हुए हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 3 इंटू 4 12 माइनस 3 इंटू 2 6, दैट इज इक्वल टू 6। M11 गया। नेक्स्ट सिमिलरली हमको निकालना है M12, M12, M12 मतलब किसका, इसका, 2 का। 2 का कैसे करेंगे, 2 जिस रो में है काटेंगे, 2 जिस कॉलम में है काटेंगे, क्या बच रहा है, 2 3 2 4। कितना आ रहा है वैल्यू, 2 3 2 4, 2 इंटू 4 8 माइनस 3 इंटू 2 6, 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2। M12 ओवर। नेक्स्ट M13 निकालेंगे, बेटा M13 निकालो, M13, M13 निकालो, M13, M13 मतलब इसका। कैसे करेंगे, 3 जिस रो में है काटेंगे, 3 जिस कॉलम में है काटेंगे, 3 जिस रो में है काटो, 3 जिस कॉलम में है काटो। तो क्या बचता है, 2 3 3 3, 2 3 3 3। तो इसको डायगोनल एक्सपेंशन करो, 2 इंटू 3 6 माइनस 3 इंटू 3 9, दैट इज इक्वल टू -3। बेटा समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट M13 गया। नेक्स्ट किसका होगा, M13 जाने के बाद आ जाएगा M21। देखते हैं M21 निकालेंगे, बेटा M21 निकालेंगे। मैं यहाँ पर देखने के लिए क्वेश्चन और एक बार लिख लेता हूँ, फिर उसको मिटा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको जानने के लिए लिख लेता हूँ और एक बार, क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन था क्या, और एक बार क्वेश्चन जानने के लिए लिख लेता हूँ। क्वेश्चन दिया था 1 2 3, नेक्स्ट दिया था 2 3 2, नेक्स्ट दिया था 3 3 4। ठीक है, अभी क्या करेंगे, M21 निकालेंगे। M21 किसका, ये वाला। तो ये जो 2 है, 2 जिस रो में है काटेंगे, 2 जिस कॉलम में है काटेंगे, क्या बचेगा सर, बचेगा 2 जिस रो में काट लिया, कॉलम में काट दिया, 2 3 3 4, नहीं क्या, 2 3 3 4। देखते हैं, बचता है 2 3, M21 2 3 3 4। तो वैल्यू कितना आता है, 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 3 9, 8 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -1। M21 -1। नेक्स्ट M22 कितना होगा, M22 देखो, M22 किसका, ये 3 का। तो 3 जिस रो में है काटो, 3 जिस कॉलम में है काटो, क्या बचता है, 3 जिस रो में काटो, कॉलम में काटो, बचता है 1 3 3 4, नहीं क्या, 1 3 3 4। मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 3 9, दैट इज इक्वल टू -5। ओके, नेक्स्ट मेरे को निकालना है M23। बेटा M23 क्या होगा,
देखेंगे M23 मतलब ये दो का होगा, इसको काटो, ये दो जिस रो में है काटो, दो जिस कॉलम में है काटो, दो जिस रो में काट दिया, कॉलम में काट दिया, क्या बच रहा है 1 1 2, अच्छा 3 3, 1 2 3 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू 2 6, दैट इज इक्वल टू -3, हो गया, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर नीचे लिखूंगा और एक जगह पर, फिर हम 3 1 3 2 3 3 निकालेंगे। ओके, तो अभी हम निकालेंगे M31 32 33। तो देखेंगे, पहले क्वेश्चन उतार लेता हूं, फिर जाकर हमको लिखना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था? क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था 1 2 3, फिर था 2 3 2, फिर था 3 3 4। अच्छा, अभी हम निकालेंगे M31। 31 मतलब इसका 3 का, तो ये 3 का होगा क्या, 3 जिस रो में है काटो, कॉलम में है काटो, क्या बचता है? बचता है सर 3 2 3 3 2 2 3 3 2, लगाओ हिसाब, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 3 9, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 9 -5। नेक्स्ट M31 गया, नेक्स्ट M32। M32 कितना होगा? M32 लगाओ, M32 मतलब क्या है, ये 3 का, ये वाला 3 का क्या हो जाएगा, वो 3 जिस रो में है काटो, कॉलम में है काटो, तो क्या बचता है 1 2 3 2, नहीं क्या 1 2, ये 3 जिस रो में है काटो, 3 जिस कॉलम में है काटो, क्या बचता है 3 जिस रो में है काट दिया, 3 जिस कॉलम में काट दिया, कितना आता है M32 में? M32 आ जाएगा आपका, गलती कहीं पर लिखा हूं क्या, 1 2 3, अच्छा 2 3 2 3 3 4। अच्छा, हमको निकालना है कौन सा, ये 3 का, ये 3 का मतलब 3 जिस रो में है काट लिया, 3 जिस कॉलम में है काट लिया, 3 रो में काटा 1 2 3 2, ओके 1 2 3 जिस रो में काटा, कॉलम में काटा 1 2 3 2, 1 2 3 2, मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना 6, दैट इज इक्वल टू -4, ठीक है। M32 गया, नेक्स्ट M32 के बाद आ गया हमारा M33। M33 ये है C33 का, तो इसको काटो, इसको काटो, क्या बचता है 1 2 2 3, नहीं क्या 1 2 2 3, इसका हिसाब करो, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 आ गया हमारा कितना 4 -1, ओके। C32 M32 का वैल्यू कितना आता है, तो इस रो में काटा 1 2 3 2, ठीक, सो 3 3 हो गया। नेक्स्ट इसको मैं काट लेता हूं अभी, अभी मेरे को क्या करना है, अभी मैं सबका को फैक्टर निकालूंगा। सो व्हाट इज द को फैक्टर, देखते हैं एक एक का। तो फर्स्ट का को फैक्टर, फर्स्ट का को फैक्टर क्या होगा, तो M11 आ गया, अभी मेरे को C11 चाहिए, यहाँ पर C को फैक्टर सब चाहिए, ठीक है। तो पहले लिखते हैं C11 क्या है, C11 क्या है और C11 कैसे निकलेगा देखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे C11, नेक्स्ट स्टेप को फैक्टर C11, अभी देखेंगे 1 + 1, 1 + 1 मतलब रो नंबर कॉलम नंबर, 1 + 1 2, 2 इज ए पॉजिटिव साइन, तो प्लस M11 इसका वैल्यू होगा, तो प्लस M11 मतलब +6, दैट इज इक्वल टू 6, गया क्या C11 गया, निकल गया। नेक्स्ट हमको निकालना है C12, कैसे निकलेगा, 1 + 2 = 3, 3 मतलब
माइनस M12 दैट इज इक्वल टू कितना -2, इसका वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट C13 निकालना है बेटा। C13 कैसे निकालेंगे? C13 1 + 3 इज इक्वल टू 4। 4 इज ए इवन नंबर, इवन नंबर मीन्स इट्स प्लस, प्लस क्या करेंगे M13 दैट इज इक्वल टू प्लस M13 कितना है -3, मल्टीप्लाई करो दैट इज इक्वल टू -3 हो गया। नेक्स्ट M21 निकालेंगे, निकालो M21। M21 दिया हुआ है, C21 निकालो, को फैक्टर 21, C21 आ गया कितना C21 इक्वल 2 + 1 3, 3 मतलब इज ए ऑड नंबर तो माइनस M21 तो कितना हो जाएगा -M21 था -1 -1 दैट इज इक्वल टू +1। नेक्स्ट M22 M2 + 2 इज C22 निकलेगा, C22 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 4 is a even number, it means plus whole into M22 that is equal to plus M22 का वैल्यू -5 प्लस इंटू -5 -5। नेक्स्ट M23 का होगा क्या C23 will be 2 + 3 5, 5 means is a odd number, odd means 5 minus into M23 that is equal to -3 that is equal to minus into minus plus +3। नेक्स्ट M31 निकालेंगे, M31 का को फैक्टर कितना होगा? M31 का सर को फैक्टर आपका आ जाएगा C31 कितना होगा? C31 होगा, आप देखिए C31 कितना हो जाएगा 3 + 1 is equal to 4, 4 is a which number? 4 is a even number means plus M31 that is equal to plus M31 कितना है -5 प्लस इंटू -5। नेक्स्ट M32 मतलब C32 निकालना है, 3 + 2 5, 5 is a odd number, odd means minus M32 -4 है, -4 that is equal to +4। नेक्स्ट C33 means 3 + 3 6, 6 is a even number that is equal to plus M33 that is equal to plus M33 is equal to -1 that is equal to -1। तो सारा को फैक्टर निकल गया, माइनर निकल गया था, फिर को फैक्टर निकल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। तो लिखेंगे इन दिस केस को-फैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू CF दैट इज इक्वल टू को-फैक्टर का मैट्रिक्स निकालो। को-फैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा? बहुत इजी है, C11 C12 C13, नेक्स्ट C21 C22 C23, नेक्स्ट होगा C31 C32, नेक्स्ट होगा C33। अभी ये सारा वैल्यू हम निकाले हैं ऊपर में निकाले हैं, तो सबको देखकर यहाँ पर उतार देंगे वैल्यू। तो नेक्स्ट कितना होता है? C11 12 13, 11 का वैल्यू कितना है 6 - 2 - 3, तो लिखेंगे 6 - 2 - 3, 6 - 2 - 3 हो गया। नेक्स्ट C21 21 22 23, C21 का मतलब क्या है? C21 1 - 5 3, 1 - 5 3, 1 - 5 3। नेक्स्ट आ गया ये C31 C32 C33, C1 C32 33, C1 का वैल्यू कितना है? C31 का वैल्यू है -5, 32 का वैल्यू है 4 और इसका वैल्यू है -1 दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू, ये आ गया आपका को-फैक्टर मैट्रिक्स।
नेक्स्ट हमको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। व्हाट इज एडजॉइंट? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो लिखेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का CF का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला है, रो को कॉलम कर देंगे, कॉलम को रो कर देंगे। तो लिखो क्या हो जाएगा, पहले ये C1 को R1 में लिख दो, 6 1 -5, ये क्या। नेक्स्ट C2 को R2 में लिख दो, -2 -5 4। नेक्स्ट C3 को R3 में लिख दो, -3 3 -1। So this is adjoint A आंसर। बेटा एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, स्टेप सब याद रहेगा। पहले क्या किए एक बार समझा देता हूं। देखो पहले क्या किया, पहले एक मैट्रिक्स दिया था, ये वाला मैट्रिक्स, ए वाला मैट्रिक्स दिया था, 1 2 3 2 3 2 3 3 4 3 into 3 वाला मैट्रिक्स था। फिर उसका क्या किया, पहले उसको डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस किया, फिर उसका सारा एलिमेंट का क्या निकाला, माइनर निकाला। जैसे M11 निकाला, M12 निकाला, M13 निकाला, M21 निकाला, M22 निकाला, M23 निकाला, फिर क्या निकाला, M31 निकाले, फिर M32 निकाले, फिर M33 निकाले। अच्छा ये माइनर कैसे निकालते हैं, वो जो एलिमेंट है वो जिस रो में है उसको काट लेते हैं, वो जिस कॉलम में है उसको काट लेते हैं, बाकी जो बचता है उसको बोलते हैं माइनर। एक बार माइनर मिल गया, फिर हम क्या किए, कोफैक्टर निकाले। कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर वही है, माइनर में एक अच्छा साइन देना है। साइन कैसे निकलेगा, हमको रो नंबर कॉलम नंबर मिलाना है, अगर वो ऑड फिगर है माइनस, अगर वो इवन फिगर है प्लस। तो देखेंगे C11 में प्लस हो गया, 1 2 में माइनस हो गया, 1 3 में प्लस हो गया, 2 1 में माइनस, 2 2 में प्लस, 2 3 में माइनस, नेक्स्ट 3 1 में प्लस, 3 2 में प्लस, 3 3 में 3 2 में माइनस, 3 3 में प्लस। इस तरह का हम सबका कोफैक्टर निकाल दिए। एक बार कोफैक्टर निकाल गए, फिर हम क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स अच्छा है, कोफैक्टर को सजाकर लिख देने को कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। C11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस हिसाब से सजा दिए। फिर वैल्यू निकल गया, फिर एक बार वैल्यू आ गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया, फिर एडजॉइंट ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, इसका रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है। तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज कर दिया तो इसका रो को जो था, इसका रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, जो वैल्यू आया वो हमारा आंसर है। दिस इज रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे कैलकुलेट होता है हम लोग बात कर चुके हैं, क्लियर है क्या। तो एडजॉइंट ए समझ में आ रहा है, तो एडजॉइंट ए ओवर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, हेडिंग कीजिए। हेडिंग कीजिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बेटा व्हाट इज इनवर्स, इनवर्स का मतलब ऑपोजिट, समझ में आ रहा है क्या। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा 5 का इनवर्स क्या है, 5 का इनवर्स सर 1/5 है। 5 into 1/5 कितना आता है, 1 आता है, समझ में आ रहा है क्या। सिमिलरली 8 का इनवर्स कितना है, 1/8 है, 1 आता है। तो ए का, ए अगर एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स को बोलते हैं a⁻⁻1, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो a into a-1
will be an identity matrix. इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. मैं एक थोड़ा झलक दे दिया. इनवर्स क्या है. इनवर्स क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स दिया होगा और एक मैट्रिक्स ऐसा निकालेंगे जैसे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है. व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? मैं बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह का होता है जहां पर डायगोनल एलिमेंट सब 1 होता है, इस तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और नहीं तो कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 3 वाला 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1, इस तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसको हम डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे. इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है. इसके बारे में डिटेल्स में अभी हम पढ़ेंगे. हेडिंग कीजिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. फर्स्ट पॉइंट बेटा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? हमको 2 चीज जानना पड़ेगा. सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है. तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए. बिफोर नोइंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, we must be familiar with, किसके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा? 2 चीज के बारे में. फर्स्ट सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स और एक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अच्छा, ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर हमेशा कौन सा मैट्रिक्स का निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का. स्क्वायर मैट्रिक्स 2 तरह का हो सकता है, सिंगुलर हो सकते हैं, नॉन सिंगुलर हो सकते हैं. तो इनवर्स कैन ओनली बी कंप्यूटेड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. किस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू 0 है. बेटा समझ पा रहा है क्या? अच्छा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है. बात समझ पा रहा है क्या? तो 2 तरह का मैट्रिक्स होता है, एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर ए, सिंगुलर मैट्रिक्स. लिखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स singular matrix is a square matrix whose determinant value is 0. सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे? जो अगर ये मैट्रिक्स है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 आएगा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो ये हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? थोड़ा लिखेंगे. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant value is not 0. Non-singular matrix is a square matrix whose determinant value
इज नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो दो तरह का मैट्रिक्स होता है, एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बेटा ये जो इनवर्स निकलता है, इनवर्स कैन बी कैलकुलेटेड ओनली ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया? इसका मतलब इनवर्स कैन बी कैलकुलेटेड ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट हो सकता है, इनवर्स कैन बी कैलकुलेटेड किसका? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है, लेकिन ये सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता है। इनवर्स कैन नॉट बी फाउंड आउट किसका? सिंगुलर मैट्रिक्स का। बेटा याद रहेगा, तो क्या होगा, हमको पहले समझ में आ गया, इनवर्स सारा मैट्रिक्स का नहीं निकल सकता है। इनवर्स किस मैट्रिक्स का निकलेगा? इनवर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलेगा। व्हाट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होगा? वैल्यू जीरो नहीं है, उसका ही हम क्या निकाल सकते हैं? इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स सारा स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं निकल सकता है, किसका? नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकल सकता है, ये वाला चीज का इनवर्स निकल सकता है, इसका नहीं निकल सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका ही हम क्या निकाल सकते हैं? इनवर्स निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट तो नोट, inverse can be computed only of non singular matrix. What is non singular matrix? अभी लिखूंगा। What is non singular matrix? It is a square matrix whose determinant value is not zero, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या नहीं है? जीरो नहीं है। उस तरह का मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अभी इनवर्स क्या है? सपोज ए एक मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा है? मैं पहले समझा रहा हूं फिर लिखूंगा व्हाट इज इनवर्स, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। सपोज ए एक मैट्रिक्स है, ए इज ए मैट्रिक्स, ए इज ए मैट्रिक्स, इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स होगा ए डैश, इसका इनवर्स होगा ए डैश या ए टू द पावर -1, जिसको हम बोलते हैं ए टू द पावर -1। इसका इनवर्स क्या होगा? ए टू द पावर -1। लेकिन डेफिनेशन बोलता है ए इंटू ए टू द पावर -1 विल बी इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होगा? a into a to the power -1 will be a आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? मैं बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू क्या है? जीरो है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? इसका डायगोनल एलिमेंट वन है और अदर्स क्या है? जीरो है, अदर एलिमेंट जीरो। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो तो इसका मतलब क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस फॉर्म में होता है? जनरली इस फॉर्म में होता है,
1 0 0 1 ये वाला फॉर्म में आएगा, या नहीं तो 1 0 0 0 1 0 नेक्स्ट 0 0 1 इस फॉर्म में हमारा आएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये रफ है, इसको रफ रहने दो, अभी ये समझने के लिए मैं बताया हूं। अभी इसका फॉर्मल डेफिनेशन में लिखूंगा, इनवर्स क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे व्हाट इज इनवर्स डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिखो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डेफिनेशन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स लिखो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू, if A is a non-zero square matrix, व्हाट इज नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है? जीरो नहीं है। ए इज ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स and B is a square matrix we can tell that the inverse of A is B if, कंडीशन क्या है? इज बी, बी को भी बोलते हैं क्या? ए टू द पावर -1 इज बी इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल्ड। क्या कंडीशन फुलफिल्ड होता है? अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो हम क्या करेंगे? इसको ए को, बी को ए का इनवर्स को लेंगे। क्या है कंडीशन? क्या है कंडीशन? लिखेंगे फर्स्ट, ए इंटू बी should be equal to B into A should be equal to an identity matrix. ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है, बी होगा ए का इनवर्स। ये कंडीशन को मैं और एक बार समझाता हूं। बी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखेंगे ये कंडीशन क्या बोलता है? ए इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए इजिकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका 3-4 इंटरप्रिटेशन है। पहला, ए इंटू बी, बी का मतलब क्या है? इनवर्स ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर -1 इजिकल टू b into a, that is equal to a to the power -1 into a। समझ में आ रहा है क्या? that is equal to one identity matrix। इसका मतलब a into a to the power -1 जो होगा, a to the power -1 into a वही होगा। इसका और एक इंटरप्रिटेशन है, इसका और एक इंटरप्रिटेशन है। क्या है? b, a का इनवर्स है b, b का इनवर्स भी a होगा। तो a का इनवर्स a टू द पावर -1 इज इक्वल टू b एंड b टू द पावर -1 होगा a। इसका मतलब a का b अगर इनवर्स होगा, b का a भी इनवर्स होगा, क्योंकि a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। तो a into a to the power -1 is equal to a to the power -1 into a, that is equal to an identity matrix. Next, a to the power -1 is equal to b and b to the power -1 is equal to a। इसका मतलब a का b इनवर्स है, b का a इनवर्स है। समझ में आ रहा है क्या? Now, these are the things we can find it out from the
डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब एक जहां पर एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पर डायगोनल एलिमेंट 1 है और बाकी एलिमेंट 0 है। डायगोनल एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, हमको क्या मिलेगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो ए का इनवर्स है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ए टू द फर्स्ट? इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए टू द पावर -1 एंड इनवर्स ऑफ ए टू द पावर -1 इज इक्वल टू ए। ये दोनों चीज हमको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इनवर्स का मतलब क्या है? एक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स अगर बी है तो ए इंटू बी करना जो है, बी इंटू ए करना वही है, और दोनों का वैल्यू मिलाकर क्या मिलेगा हमको? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? जहां पर डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इस तरह का केस होता है, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी पढ़ेंगे व्हाट आर द स्टेप्स फॉलोड टू कंप्यूट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हेडिंग करो, स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का कितना स्टेप है? बेटा एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का 3 स्टेप है। बहुत इजी स्टेप है, हम लोग सब जानते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो लिखेंगे स्टेप 1, कैलकुलेट। एक मैट्रिक्स ए है, उसका इनवर्स निकालना है, तो पहले निकालना पड़ेगा कैलकुलेट एडजॉइंट ए। इसका एडजॉइंट निकालो। अभी पढ़े थे एडजॉइंट कैसे निकालना है। इसको क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, कैलकुलेट एडजॉइंट ए। ए का एडजॉइंट निकालो। अभी पढ़े थे कैसे एडजॉइंट निकालते हैं। स्टेप 1 होगा। स्टेप 2, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ए। इसको क्या बोलते हैं? ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ए। नेक्स्ट लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, that is a to the power -1 is equal to adjoint a divide by determinant a। फॉर्मूला ओवर, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो 3 स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है। पहला क्या है? एडजॉइंट ए निकालना है। दूसरा क्या है? डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तीसरा क्या है? ए टू द पावर -1 इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। 3 स्टेप। पहले एडजॉइंट निकालो, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, फिर ए टू द पावर -1 निकालो, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। इसके ऊपर डिटेल्स में एक एग्जांपल हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास खत्म करने से पहले समरी आज का क्लास के करते हैं, क्या क्या पढ़े हैं आज के क्लास में। तो लिखो समरी। आज फास्ट पढ़े हाउ टू कंप्यूट
एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैं बताया था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला था, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स को कैसे बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स COF निकला था, कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, इसका रो को कॉलम कर देंगे, कॉलम को रो कर देंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को बोलते हैं क्या, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट पढ़े सेकेंड पॉइंट, एडजॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट पढ़े इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स सिर्फ कौन सा मैट्रिक्स का निकल सकता है, इनवर्स सिर्फ सिंगुलर मैट्रिक्स का निकल सकता है, सिंगुलर नहीं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। ये सिर्फ कौन सा मैट्रिक्स का निकल सकता है, ये सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकल सकता है। व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकल सकता है। व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant value is not equal to 0। इसका ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं। फिर हम पढ़े इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, इनवर्स को बोलते हैं a⁻⁻1। इसका फॉर्मूला क्या है पढ़े, इसका फॉर्मूला है एडजॉइंट a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट a। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये दोनों मेन फॉर्मूला आज के क्लास में हम डिस्कस किए, ठीक है। तो बिफोर कंक्लूडिंग माय सेशन, लेट मी फर्स्ट टेल you, if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe to my YouTube channel. My YouTube channel is Commerce Forum. Commerce Forum. Once you subscribe it, kindly press bell icon. And if you like my videos, kindly press the like button. If you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is Viswamishra, BISWOMISHRA @gmail.com. Thank you. Thank you for watching my videos. Thank you. Thank you all. Have a nice day. Thank you.